नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एसेंशियल इलेक्ट्रिकल्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे न्यू सिलेबस के बारे में, जो कि है पावर सिस्टम 1। सो आज के लेक्चर से हम इस चैनल पर एक और जो है वो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि है पावर सिस्टम 1। ठीक है, अगर आप जीटीयू में स्टडी कर रहे होंगे तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में आपका ये सब्जेक्ट आएगा, पावर सिस्टम 1। जो पहले के सिलेबस की मैं बात करूँ तो वो पहले आता था इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, बाद में ईपीएस 1, ईपीएस 2 ऐसा कुछ था। ठीक है, न्यू सिलेबस में हमारा जो ईपीजी है और ईपीएस 1 का सिलेबस है उसको मर्ज करके एक नया सिलेबस दिया है, जो कि है पावर सिस्टम 1। ठीक है, आज फर्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है कन्वेंशनल जनरेशन, लोड कर्व्स एंड टैरिफ। और जो टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है जनरेशन सिनारियो इन इंडिया एज वेल एज इन केस ऑफ गुजरात। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम ये दोनों टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जनरेशन सिनारियो के बारे में बेसिकली। ठीक है, सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो पूरा लेक्चर है, आई मीन द पावर सिस्टम का पूरा सिलेबस है, उसको मैं कवर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ 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 गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो गिव द थम्स अप टू दिस वीडियो। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरेशन सिनारियो इन इंडिया, और वी कैन से इन केस ऑफ गुजरात। ओके, तो जनरेशन सिनारियो इन इंडिया की बात करें, सो इंडिया इज फेयरली रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, लिग्नाइट एंड हैज हाई इमेंस वाटर रिसोर्सेज, बट आउट ऑफ विच ओनली 30% हैव बीन यूटिलाइज सो फार। तो हमें पता है हमारे पास जो है बहुत सारा कोल है, लिग्नाइट का रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, बट आउट ऑफ 100% वी आर ओनली यूजिंग 30%, द रेस्ट ऑफ 70% इज स्टिल अनयूज्ड. Now, some oil reserves has been discovered and power generation from these are already executed. At the same time, India has also the rich deposits of thorium and it has been utilized for the power generation. Okay, so thorium is used in case of nuclear power generation to generate the electricity. Now, if you talk about the renewable energy sources, so India actually have tried and also trying to utilize the renewable energy sources like sun energy, like wind energy, tidal energy and all other type of renewable energy sources. Okay, so still we are using some of the solar, we can say in solar power plant India is going in a very high speed. Okay, at the same time in tidal also India is trying to use more and more renewable energy. Okay, now let us discuss about some of the conventional generation resources, because in this unit we are going to discuss about that the thermal power station, the nuclear power station and the hydro power station. So let us first discuss about the how the growth of installed capacity is already done in case of India. So if we start with since 31st December 1947, it was the, we can say the installed capacity at that time was somewhere around 1900 megawatt. Okay, 1900. So here you can see a slightly, that is there is a plot of 1900 megawatt. That value is very small, that is why you cannot able to notice that. Okay, at the beginning of first 5 year the installed generating capacity was somewhere around 2300 megawatt. And if we talk about the second 5 year, that it was somewhere around 5 to 10,000 megawatt, and or we can say in next 5 years also it is somewhere around 10 to 20 megawatt. So here you can see as time from 1947 to 2020 your installed capacity is in increasing order. Okay, so this is the digit from 31st March 2020 where our installed capacity is somewhere around 380 megawatt. Okay, so in 31st March 2020 the installed capacity in India is somewhere around 370 to 380 gigawatt, not in megawatt. Okay, here the all these figures are in megawatt, so if we talk in megawatt it will be 3,80,000 megawatt. Okay, so it is going to be increasing in that manner. Now obviously it is going to be increased because our power consumption is also going to increase. Okay, so in that way your installed capacity should be increased. Now let us discuss about the thermal power plant in India, because this is generally shares the major load in case of power consumption. So we have to consider thermal power plant first. So I have just listed some of the thermal power plant which is having higher amount of installed capacity. So these are, we can say this is the top 10 list of your thermal power plant which is having the high installed capacity. So the first is Madhya Pradesh, where we generally known as the Vidyanchal TPS. TPS stands for thermal power station, where 12 units are there. इसमें से 6 है वो 210 मेगावाट के हैं और बाकी के 6 है वो 500 मेगावाट के हैं. सो अल्टीमेटली टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होगी
4760 मेगावाट, ठीक है। वो जनरली ऑन एंड ऑपरेटेड बाय एनटीपीसी। सेम गुजरात में मुंद्रा में है, ये दोनों पावर प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, जिनकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 4620 मेगावाट एंड 4000 मेगावाट। ओके, एक जो है वो अदानी पावर के द्वारा ऑपरेटेड है, दूसरा है वो सीजीपीएल के द्वारा है, ठीक है। सेम मध्य प्रदेश में सासन, महाराष्ट्र में तिरोड़ा, उड़ीसा में तलचर, उत्तर प्रदेश रिहान टीपीएस, छत्तीसगढ़ सीपत टीपीएस, महाराष्ट्र चंदरपर, उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी दादरी। सो ये जो 10 मैंने जो लिस्टेड यहाँ पर की है थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ये हमने यहाँ पर दिखाई है, और उसमें कौन से कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है और पर ईच यूनिट उसका जो है वो रेटिंग क्या है वो भी हमने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। और वो अभी किसके द्वारा ऑपरेटेड है, तो भाई मध्य प्रदेश में जो शासन है विच इज़ ऑपरेटेड बाय द रिलायंस पावर, मतलब तिराड़ा का जो है थर्मल पावर स्टेशन है विच इज़ ऑपरेटेड बाय अदानी, एंड ऑल दीस आर ऑपरेटेड बाय एनटीपीसी। ओके, ये जो महाराष्ट्र में चंद्रपुर का है वहाँ पर 5 यूनिट है, वो है 500 मेगावाट की, और 2 यूनिट है वो है 210 मेगावाट पे, जिसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2920 मेगावाट है, जो कि ऑन एंड ऑपरेटेड बाय है वो है मध्य प्रदेश की जो वो गवर्नमेंट वहाँ पर जो होती है, ये प्राइवेट यूनिट नहीं है, दैट इज़ ऑपरेटेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट ओनली। ओके, सो ये टॉप 10 मैंने जो अभी, क्योंकि आप अपने बुक में देखेंगे तो उसमें अभी पुराने डेटा है उसको रिगार्डिंग दिखाया होगा, लेकिन ये प्योरली फ्रेश डेटा है, सो यू कैन रेफर इट। ओके, सेम अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो थर्मल पावर स्टेशन हमने दिखाए हैं, सो द प्लांट्स विच आर वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, एंड ऑल्सो सम पार्ट्स आर वर्किंग अंडर द प्राइवेट सेक्टर। ओके, सो द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने बताया कि भाई टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया के कितनी है, समवेयर अराउंड 380 गीगावाट आप बोल सकते हैं। उसमें से थर्मल पावर स्टेशन की अगर हम बात करें तो उसका जो होगा मेजर शेयर कवर होगा, सो 61% ऑफ टोटल कैपेसिटी इज ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ओके, उसमें से भी अगर हम टॉप 3 स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात आर हैविंग हाईएस्ट कैपेसिटी, और उसकी कैपेसिटी है वो 28,173 जो कि मध्य प्रदेश की है, 23,902 ओके उत्तर प्रदेश की है, एंड 23,783 जो कि गुजरात की है। ओके, सो सम ऑफ द प्लांट्स आर वर्किंग अंडर गवर्नमेंट सेक्टर एंड सम ऑफ द प्लांट्स आर वर्किंग अंडर private sector. Okay, so this is all about the thermal power plant in India. Now let us discuss about the nuclear power plant in India. So in nuclear power station, we know that a generating station in which nuclear energy is converted into electrical energy, which is known as a nuclear power station. ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ 4 to 5 जो हमारे जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है उसका जो लोकेशन है वो किस टाइप के रिएक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी कुछ डिटेल्स, ऑपरेशन की डिटेल्स और उसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है उसका मैंने यहाँ पर आपको टेबल दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो है कुंदनकुलम, जो कि रहता है तमिलनाडु में, ठीक है। वहाँ पर टाइप ऑफ जो रिएक्टर है वो है PWR, सो P मीन्स प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, ठीक है। BHWR इट इज़ नथिंग बट boiling heavy water reactor, एंड PHWR विच इज़ नथिंग बट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। सो उस टाइप का रिएक्टर है वहाँ पर यूज़ होता है। अब आपको अभी पता नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में, उसके हर एक कंपोनेंट के बारे में हम इस लेक्चर सीरीज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करूँ तो कुंदलकुलम में है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टोटल है वो है 2000 मेगावाट, देन तारापुर 14,000 मेगावाट, देन रावतभाटा विच इज़ एक्चुअली सिचुएटेड इन राजस्थान जिसकी है 1180 मेगावाट, काईगा जो कि सिचुएटेड है इन कर्नाटका जिसकी है 880 मेगावाट, एंड काकरापर जिसके बारे में आपने सुना होगा जो कि है गुजरात में, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 440 मेगावाट, जिसमें 2 यूनिट्स है 220 मेगावाट ईच के, ठीक है। सो ये डिस्कशन होगा हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द हाइड्रो पावर प्लांट इन इंडिया, और वी कैन से द पंप स्टोरेज पावर प्लांट। ओके, सो उसमें भी मैंने लिस्ट किया है जो कि रिसेंट डेटा है, ओके फ्रेश डेटा है एकदम। लोकेशन के बारे में बात करेंगे, स्टेट क्या है, उसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है। तो सबसे पहला है तेहरी जो कि उत्तराखंड में है, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2400 मेगावाट। देन कोयना, देन आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात में सरदार सरोवर डैम के बारे में आपको पता होगा, विच इज़ नियरली सिचुएटेड बरोड़ा, ओके, जिसको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1450 मेगावाट,
ओके, सो ये सब डेटाज है जिसको आपको याद रखना तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पर थर्मल पावर स्टेशन है, उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन गुजरात में कहाँ है, इंडिया में कौन से न्यूक्लियर, थर्मल और हाइड्रो पावर स्टेशन है जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ये सब डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल नंबर पता नहीं हो तो चलेगा, लेकिन आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है। ये सब तो बात हो गई इंडिया के बारे में। अगर हम गुजरात के बारे में डिस्कस करें तो गुजरात का पावर मैप यहाँ पर मैंने दिखाया है, जो कि मैंने एसएलडीसी की जो वेबसाइट है वो के, एसएलडीसी मतलब स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, ठीक है। तो एसएलडीसी की जो वेबसाइट है उस पर से लिया है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि भी आपके पावर जनरेटिंग स्टेशन कितने हैं, ट्रांसमिशन लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है, उसके वोल्टेज लेवल कितने हैं, उसकी वजह से यहाँ पर आपको लेजेंड दिया गया हुआ है, जिसमें 66 केवी होगी, 132 केवी होगी, 11 केवी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, उसके रिलेटेड यहाँ पर आपको लेजेंड दिया है, ठीक है। सो आप उसको इजीली पहचान सकते हैं। ओके, इन शॉर्ट देखें तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी मैं बात करता हूँ तब ये थोड़ा रिफ्रेश डेटा नहीं है, फ्रेश डेटा नहीं है, दिस डेटा इज फ्रॉम 1/10/2014 का डेटा है, ठीक है। तब बात करूँ हाइड्रो, तो जब मैं बात करता हूँ कि भाई स्टीम पावर स्टेशन, तो स्टीम पावर स्टेशन में कौन से आएंगे, वी आर यूजिंग फ्यूल एज अ लिग्नाइट, वी आर यूजिंग फ्यूल एज अ कॉयल एंड वी आर यूजिंग गैस, ओके। ये होगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये होगा आपका हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है। तो ये सब कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर मैं बात करूँ 2014 तक, तो वो थी 19,588, जो कि बढ़कर बहुत ज़्यादा समवेयर अराउंड 28,000 और वी कैन से 30,000 तक हो गई है अप टू 2020। ओके, सो ये डेटा है वो अगेन पुराना है, 2014 का है। अगर 2020 की मैं बात करूँ तो वो होगा 30,000, ओके। परसेंटेज शेयर की बात करूँ तो कोल की मदद से अगर हम टीपीएस में जो पावर जनरेट करते हैं उसका शेयर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। देन विथ यूजिंग गैस एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर हम बात करें, गुजरात के बारे में बात करें तो जीएसईसीएल यानी कि हमारी गुजरात स्टेट एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो इन सारे थर्मल पावर स्टेशन का नाम आपने सुना होगा, तुवारन टीपीएस, उकाई टीपीएस, वणाक, बोरी, गांधीनगर, सिक्का, कच्छ, लिग्नाइट टीपीएस, क्योंकि यहाँ पर हम जो फ्यूल है उसमें कोल यूज़ नहीं करते, लिग्नाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम उत्तरण स्टेज 1, उत्तरण स्टेज 2, हाइड्रो पावर स्टेशन कडना, हाइड्रो पावर स्टेशन उकाई, ठीक है। यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा ये सब है वो क्या है, पंप स्टोरेज टाइप टर्बाइन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो फ्यूल है वो हम कोल नहीं यूज़ करते, हम गैस यूज़ करते हैं, ओके। सो इन सब के बारे में आपको पता होगा। न्यूक्लियर पावर स्टेशन काकरा पर आप गए होगे विजिट में, ठीक है। उसकी जो डी रेटेड कैपेसिटी इन मेगावाट है 125, लेकिन ये सब पुराना डेटा है, लेकिन ये नेमो पावर स्टेशन आप अभी याद सकते हैं, ठीक है। ये सब गवर्नमेंट सेक्टर के हो गए। प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो आएंगे हमारा टोरेंट पावर प्लांट साबरमती, टोरेंट पावर वटवा, ठीक है, सुजैन, एसआर पावर प्लांट एंड जीपीईसी, Adani Power Plant, ACB India and UMPP. Okay, these are some of our coal-based, some of our gas-based power plant. Okay, so this is all about the, we can say, the generation scenario in case of India as well as the generation scenario in case of गुजरात। अभी हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जनरेशन सिनारियो के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर अपनी बुक में देखेंगे थोड़ा सा डेटा होगा वो वेरी होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो प्रेजेंटेशन में डेटा लिया है उसमें से जो इंडिया का डेटा है वो रिसेंट डेटा है। आपकी बुक में देखेंगे तो वो पुराना डेटा होगा, आउटडेटेड डेटा होगा, ओके। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन मेरी फर्ज है कि आपको मैं जो अभी रिफ्रेश डेटा है उससे वाकिफ करवाऊँ, सो इसीलिए मैंने यहाँ पर सब रिफ्रेश डेटा लिया है, ठीक है। इसी लेक्चर के बारे में कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम स्टीम पावर जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड जो आपको पढ़ना होगा तो मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा, तो आप गूगल क्लासरूम में उसके लिंक का है वो दे सकते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट थर्मल पावर प्लांट्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो थैंक यू सो मच, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।